السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ فہم القرآن کورس کلاس 15 میں آپ سب کو خوش آمدید ہے۔ اہلاً و سہلاً، مرحبا۔ آج کا ہمارا لیسن ہے سورہ البقرہ آیت 67 ٹو 75 تک۔ قرآن مجید پڑھنے والوں کی بہت فضیلت آئی ہے۔ مسند احمد حدیث نمبر 250 میں آتا ہے، سیدنا ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ سے مروی ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جو آدمی علم تلاش کرنے کے لیے کسی راستے پر چلتا ہے تو اللہ تبارک تعالیٰ اس کے لیے جنت کے راستے کو آسان فرما دیتا ہے۔ اللہ سبحانہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تبارک تعالیٰ ہم سب کے جنت کے راستے کو آسان بنا دے۔ کل مومن کل مومنات اور ہم سب کے والدین اور ہم سب کے جو آنے والی ذریت ہے، اولادیں ہیں، سب کے سب سارے مومن سارے مومنات کے جنت کے راستے کو آسان فرما دے، اور اس راہ میں ہم سب کی کوششوں کو اللہ سبحانہ تعالیٰ قبول فرمائے، آمین یا رب العالمین۔ نحمدہ و نصلی علی رسولہ الکریم، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی، ربی زدنی علما، ربی یسر ولا تعسر وتمم بالخیر وبک نستعین، آمین یا رب العالمین۔ سورہ بقرہ آیت نمبر 67، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ وَإِذْ قَالَ مُوسَى لِقَوْمِهِ إِنَّ اللَّهَ يَأْمُرُكُمْ أَن تَذْبَحُوا بَقَرَةً قَالُوا أَتَتَّخِذُنَا هُزُوًا قَالَ أَعُوذُ بِاللَّهِ أَنْ أَكُونَ مِنَ الْجَاهِلِينَ۔ اور جب موسیٰ نے اپنی قوم سے کہا، بے شک اللہ تعالیٰ تمہیں حکم دیتا ہے کہ تم ایک گائے کو ذبح کرو، تو انہوں نے کہا، کیا تم ہم سے ہنسی مذاق کرتے ہو؟ موسیٰ نے کہا کہ میں اس بات سے اللہ کی پناہ مانگتا ہوں کہ میں جاہلوں میں سے ہو جاؤں، جاہلوں میں شامل ہو جاؤں۔ تو یہاں اس آیت میں بقرہ لفظ بھی آیا ہے۔ بقرہ کی میننگ ہوتی ہے گائے، عربی میں بقرہ کہتے ہیں اور اردو میں ہم لوگ اس کو گائے کہتے ہیں۔ اس واقعے کو جہاں پہ یہاں سے شروع ہو رہا ہے، جس سے یہاں پہ آغاز ہو رہا ہے، اسے کہتے ہیں گائے کا واقعہ۔ اس گائے کے واقعے کی وجہ سے اس پورے سورت کا نام بھی کیا ہو گیا؟ بقرہ ہو گیا، گائے ہو گیا، کیونکہ یہ ایک اہم واقعہ ہے جس میں ہم سب کے لیے بہت بڑی نصیحتیں اور عبرت ہیں۔ بنی اسرائیل کو بھی اس گائے کے ذبح کرنے کا حکم ملا تھا، یعنی ان کو اس گائے کو انہوں نے بچڑے کو معبود بنا لیا تھا نا۔ پچھلی آیتوں میں ہم لوگ نے کیا پڑھا تھا؟ جب موسیٰ علیہ السلام کوہ طور پر اللہ سے ملاقات کرنے گئے اور توریت کی تختیاں لینے گئے، شریعت لینے گئے، اور ان کے پیچھے بنی اسرائیل نے کیا کیا تھا؟ بچڑے کو ہی معبود بنا لیا تھا۔ تو بچڑا یعنی گائے کا ہی بچڑا تھا وہ، تو گائے کی محبت ان کے اندر رچ بس گئی تھی۔ تو پھر انہوں نے بڑے بڑے وعدے کیے، بڑے بڑے توبہ کی، بڑی استغفار کیے، یہاں تک کہ ایک دوسرے کو بھی قتل کر دیا ہے نا۔ لیکن صرف زبانی کلامی سے بات نہیں پوری ہوتی ہے، اللہ سبحانہ تعالیٰ انسان کو آزماتے بھی ہیں کہ وہ انہوں نے کہا، آمنا، ایمان لائے ہم، یا اللہ ہم آپ پر ایمان لاتے ہیں اور موسیٰ علیہ السلام پہ بھی ایمان لاتے ہیں، اور ہم اپنی اصلاح کرتے ہیں، ہم استغفار کرتے ہیں کہ ہم نے بچڑے کو معبود بنایا۔ اس کے بعد انہوں نے کفارہ کیا، ایک دوسرے کو قتل بھی کیا، اور اللہ نے ان کو معاف بھی کر دیا۔ لیکن اب کیا تھا ان کی؟ اب اللہ سبحانہ تعالیٰ ان کو چیک کرنا چاہتے تھے، ان کا ٹیسٹ ہونا تھا۔ تو اس جگہ پہ اللہ سبحانہ تعالیٰ نے گائے کے واقعے کو لائے ہیں، جو گائے کو ذبح کرنے کو اللہ سبحانہ تعالیٰ نے بنی اسرائیل کو حکم دیا تھا۔ تو اللہ سبحانہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ اے بنی اسرائیل، تم میری اس خلق عادت احسان کو بھی یاد کرو جو گائے کی صورت میں ہم نے تم پر کیا تھا، کہ تم کو معلوم ہے کہ قاتل کون ہو، یعنی ان کو معلوم ہو جائے کہ قاتل کون ہے۔ اور اس لیے کہ اللہ تعالیٰ نے مقتول کو زندہ بھی کیا تھا تاکہ وہ خود بتا دے کہ اس نے کسے قتل کیا ہے۔ مرے ہوئے شخص خود اٹھ کے بتائے کہ اس کو کس نے قتل کیا ہے، ایسا آج ہم سے اور آپ سے کوئی کہے نا تو امپاسبل ہے۔ تو بالکل بات دراصل یہی ہے کہ امپاسبل ہے، لیکن واقعہ تو یہی ہے، اس پر ہمارا ایمان ہونا چاہیے۔ اور واقعہ ان کے وقت میں بھی تھا، یعنی یہود کے وقت میں بھی یہی واقعہ تھا۔ تو بنی اسرائیل کا دراصل یہ واقعہ تھا کیا؟ بنی اسرائیل میں یہ واقعہ کس چیز کا تھا؟ تو بات دراصل یہ ہے کہ بنی اسرائیل میں ایک شخص بے اولاد تھا، جس کی کوئی اولاد نہیں تھی، لیکن وہ بہت مالدار تھا، اس کی بہت پراپرٹیز تھی۔ اس کا ایک بھتیجا تھا، یعنی بھائی کا بیٹا تھا، جو اس کا وارث ہو بھی جاتا، لیکن اس نے اپنے چچا کو قتل کر دیا، اپنے چچا کو مار دیا، مال کی لالچ میں، پراپرٹی کی لالچ میں، اور اس کی لاش کو رات کے وقت اپنے ہی آس پڑوس کے دروازے پر اس نے ڈال دیا۔
اور پھر دعویٰ بھی کر دیا کہ اس نے اسے قتل کیا ہے، یعنی کہ جس کے دروازے کے آگے اس نے اپنی چچا کو لاش کو پھینکا تھا، یعنی اس شخص کے اوپر اس نے اپنی چچا کا الزام لگا دیا، چچا کی موت کا الزام اس دوسرے شخص پر اس نے ڈال دیا۔ نتیجہ کیا ہوا؟ اس کی وجہ سے بنی اسرائیل آپس میں لڑنے لگے ان میں، لیکن کچھ عقل مند لوگ تھے تو انہوں نے کہا آپس میں کیوں لڑتے ہو، یہ اللہ کے رسول تمہارے درمیان موجود ہے، اور اللہ سے فیصلہ لو اور اللہ کے رسول سے فیصلہ لو۔ تو وہ حضرت موسیٰ علیہ السلام کے پاس آئے اور انہوں نے اس واقعہ کا ذکر کیا، تو حضرت موسیٰ علیہ السلام نے فرمایا ان اللہ یأمرکم ان تذبحوا بقرہ قالوا اتتخذنا ہزوا قال اعوذ باللہ ان اکون من الجاہلین، بے شک اللہ تعالیٰ تم کو حکم دیتا ہے کہ تم ایک گائے کو ذبح کرو۔ تو انہوں نے کہا، یعنی بنی اسرائیل نے کہا کہ آپ ہم سے ہنسی مذاق کرتے ہیں، ہنسی کرتے ہیں، مذاق کرتے ہیں؟ تو موسیٰ علیہ السلام نے کہا میں اللہ کی پناہ مانگتا ہوں کہ میں نادانوں میں سے ہو جاؤں، میں جاہلوں میں سے ہو جاؤں، میں ایسے لوگوں میں سے ہو جاؤں کہ جو جاہل ہیں۔ تو لیکن انہوں نے کیا کیا؟ انہوں نے گائے کو ذبح کرنے کو بہت عجیب سی بات سمجھی کہ دراصل دیکھیے ان کے دلوں میں گائے کی محبت رچ بس گئی تھی اور وہ اس احکام سے بچنا چاہتے تھے، وہ گائے کو ذبح کرنا ہی نہیں چاہتے تھے۔ کیوں؟ کیونکہ گائے کو وہ اپنے جو ہے نا معبود سمجھتے تھے، گائے کی محبت ان کے دلوں میں رچ بس گئی تھی، اور ایک طویل عرصے تک فرعون کے ساتھ بھی رہے، اور وہاں ان کے درمیان بھی کچھ لوگ ایسے تھے جو گائے کی عبادت کرتے تھے۔ اور جب یہ فرعون سے نجات پا کر ایسی جو ہے راستے میں ایک ان کو ایسی بستی سے ان کو وابستہ ہوئے، ایک ایسی بستی سے ان کو پایا، انہوں نے ملاقات ہوئی جو گائے کی پوجا کر رہے تھے۔ تو انہوں نے موسیٰ علیہ السلام سے بھی کہا کہ آپ ہمارے لیے کوئی ایسا معبود بنا دیے جس کو ہم عبادت کریں۔ تب موسیٰ علیہ السلام نے ان کو بہت زیادہ ڈانٹا بھی تھا، اور لیکن اس جس کا ڈر تھا وہی ہوا۔ جیسے ہی موسیٰ علیہ السلام کو یہ طور پہ اللہ تبارک تعالیٰ سے ملنے گئے، اور ان کے پیچھے ویسے ہی ان کی بنی اسرائیل یعنی ان کی قوم نے بچڑے کو معبود بنا لیا۔ اب ٹیسٹ تھا کہ وہ دکھائیں، وہ پروو کریں کہ وہ واقعی میں بچڑے کو بچڑا ہی سمجھتے ہیں، گائے کو گائے ہی سمجھتے ہیں، معبود نہیں سمجھتے ہیں۔ لیکن یہ احکام ان کے لیے بڑا ہی مشکل تھا، اور انہوں نے ڈھیروں کے ڈھیروں سوال کا ایک لسٹ تیار کر دی۔ کیوں؟ کیونکہ وہ دراصل اس احکام سے بچنا چاہتے تھے۔ انہوں نے بہت سارے سوال کیے۔ اب اس آیت 68، 69، 70 اور 71 تک یہاں پر ان کے سوال چلیں گے۔ جو سوال انہوں نے کیے وہ بہت سارے سوال تھے۔ دراصل سوالات اگر وہ نہ کرتے اور جو ان کو گائے ذبح کرنے کو کہا گیا ہے وہ اس کو مان لیتے تو ان کے لیے یہ کام جو ہے آسان ہو جاتا، بہت آسان ہو جاتا۔ لیکن دراصل یہ کام کیا ہو گیا، ان کے لیے ہی بہت مشکل ہو گیا، کیونکہ انہوں نے اتنے سوالات کیے تھے جس کو بھی ہم لوگ پڑھیں گے۔ تو جس کے نتیجے میں لاسٹ میں سب سے آخری میں انہوں اس گائے کو پا لیتے ہیں، اس گائے تک پہنچ جاتے ہیں جس کو انہوں نے سوالات کرتے کرتے بہت مشکل بنا لیا تھا۔ تو آخری میں جب ان کو ایسی ایک شخص کے پاس گائے ملتی ہے، بڑی مشکل سے ان کو وہ ایک گائے ملتی ہے، تو پھر اس شخص نے کہا اللہ کی قسم، اس کی قیمت کے طور اس گائے کی کھال کے برابر سونا میں لوں گا تم سے، اور اس میں ذرا برابر بھی میں کمی نہیں کروں گا۔ تو انہوں نے اتنا سودا پھر دیا، یعنی اس شخص کو اس گائے کے خال کے برابر اس کو سونا بھی دیا، پھر اس سے خریدا بھی۔ آئیے دیکھتے ہیں کہ وہ کون سے سوالات تھے جو بنی اسرائیل نے بار بار کیے موسیٰ علیہ السلام سے۔ آیت نمبر 68 دیکھیے، قالوا ادعوا لنا ربك يبين لنا ما هي قال انه يقول انها بقرة لا فارض ولا بكر عوان بين ذلك فافعلوا ما تؤمرون۔ انہوں نے کہا کہ اے موسیٰ، ہمارے لیے اپنے رب سے دعا کرے کہ وہ ہمارے لیے بیان کرے کہ وہ گائے کیسی ہو۔ تو موسیٰ نے کہا بے شک اللہ تعالیٰ کہتا ہے کہ بے شک وہ جو گائے ہو، نہ تو وہ بوڑھی ہو اور نہ بچیا ہو، بلکہ درمیان میں ہو، درمیان عمر کی ہو، چنانچہ تم وہ کرو جو تم حکم دیے گئے ہو۔ یعنی موسیٰ علیہ السلام نے کہا کرو تم جو حکم دیے گئے ہو، ڈانٹ کے طور پہ۔ تو بار بار سوال کیا نا انہوں نے، سب سے پہلے سوال کیا یہ بتا دیا، اچھا موسیٰ، پہلے تو کہا انہوں نے کہ آپ ہم سے مذاق کرتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے کہا ہے گائے ہم ذبح کریں۔ تو موسیٰ علیہ السلام نے کہا کہ میں جاہلوں میں سے نہ ہوں کہ میں جو تم سے مذاق کروں، تم سے ہنسی مذاق کروں۔ اس کے بعد بنی اسرائیل نے کہا اچھا ٹھیک ہے، اپنے رب سے پوچھ لیجئے کہ وہ گائے کس طرح کی ہو۔ تو پھر موسیٰ علیہ السلام نے بتایا، اللہ نے ان کے پاس وحی کی، تو موسیٰ علیہ السلام نے بنی اسرائیل کو بتایا کہ وہ گائے جو ہے نہ تو بہت بوڑھی ہو اور نہ بالکل بچے کی عمر کی، یعنی کہ نوجوان وہ گائے ہو، اور کرو جو تم حکم دیے گئے ہو۔ آیت 69، قالوا ادعوا لنا ربك يبين لنا ما لونها
قال إنه يقول إنها بقرة صفراء فاقع لونها تسر الناظرين. تو انہوں نے کہا اے موسیٰ آپ ہمارے لیے اپنے رب سے دعا کر دیں کہ وہ ہمارے لیے بیان کرے کہ اس کا رنگ کیسا ہو. تو موسیٰ نے کہا کہ اللہ فرماتا ہے کہ بے شک وہ گائے ہو زرد رنگ کی ہو اور وہ دیکھنے والے کو خوب خوش کرتی ہو، دیکھنے والے کے لیے خوب خوش کر دینے والی ہو، دیکھنے والے کو خوش کرے وہ ایسے رنگ کی ہو. فاقع اللونہا کے بارے میں ابن عباس رضی اللہ عنہ روایت کرتے ہیں کہ وہ اس قدر گہرے زرد رنگ کی ہو کہ سفید معلوم ہوتا ہو، ایسا خوشگوار رنگ. پہلے دیکھیے ایک شرط لگی کہ نوجوان ہو، دوسری شرط لگی کہ ایسے زرد رنگ کی ہو کہ دیکھنے والوں کو خوشگوار کرتی ہو، خوبصورت زرد کلر کا ہو. تیسری دیکھیں کیا شرط ہے. پھر انہوں نے کہا قالوا ادعوا لنا ربك يبين لنا ما هي ان البقرة تشابه علينا وإنا ان شاء الله لمهتدون. انہوں نے کہا ہمارے لیے اپنے رب سے دعا کر دیں کہ وہ ہمارے لیے مزید بیان کر دے کہ وہ گائے کس قسم کی ہو. بے شک گائے ہم پر مشتبہ ہو گئی ہے اور یقیناً اگر اللہ نے چاہا تو ہم ضرور راہ پا جائیں گے، ہم ہدایت پا جائیں گے. تو انہوں نے کہا کہ ہمارے لیے آپ دعا کر دیں کہ وہ گائے کیسی ہو، کس طرح کی ہو، مزید بیان کر دے، اور اگر آپ بالکل مزید بیان کر دیں گے تو ہم بالکل ہدایت پا جائیں گے. تو آیت 71 دیکھیں. قال انها يقول انها بقرة لا ذلول تثير الارض ولا تسقي الحرث مسلمة لا شياة فيها قالوا الآن جئت بالحق فذابحوها وما كادوا يفعلون. تو موسیٰ نے کہا بے شک اللہ فرماتا ہے کہ بے شک وہ گائے مشقت کرنے والی نہ ہو، زمین میں ہل چلاتی ہوئی نہ ہو، یعنی کھیتیوں کو پانی دیتی ہوئی نہ ہو، بے عیب ہو، اس میں کوئی داغ دھبا نہ ہو. انہوں نے کہا اب تو لایا ہے حق. پھر انہوں نے اسے ذبح کیا اور وہ لگتے نہیں تھے کہ وہ یہ کام کریں گے. کتنا مشکل کام ہو گیا نا، کتنا مشکل، کتنا ڈیفیکلٹ ان کے لیے کام ہو گیا. جب ان کو ایک بس کیا حکم ملا تھا کہ گائے ذبح کرو، تو وہ چاہتے اور سنتے، وہ اللہ کے احکام کو بجا لاتے، کوئی بھی گائے کو وہ ذبح کر دیتے. لیکن دراصل کیا تھا، انہوں نے سوالات کرتے کرتے کتنے زیادہ ان کا کام مشکل ہو گیا. یعنی اس مقام پر اللہ تعالیٰ نے بنی اسرائیل کو اپنے رسول سے کثرت سوال سے کا جو ذکر کیا ہے، انہوں نے کثرت سے سوال یعنی بہت زیادہ سوال کیا تھا اپنے رسول موسیٰ علیہ السلام سے. اس وجہ سے انہوں نے جب اپنے آپ پر تنگی کی تو اللہ تعالیٰ نے انہیں بھی مشکل میں ڈال دیا. کثرت سوال کی، اپنے آپ کو تنگی میں ڈالا، اور جب تنگی میں بندہ اپنے آپ کو خود لے گیا تو اللہ نے بھی ان کو تنگی میں ڈال دیا. اور اگر وہ کوئی بھی ایسی گائے ذبح کر دیتے تو ان کے لیے درست ہو جاتا. لیکن جیسے جیسے وہ زبردست سوال کرتے چلے گئے اور سوال کے جوابات میں ان کو مشکل احکام ملتے چلے گئے تو کام کیا ہو گیا، ان کا احکام بہت ٹف ہو گیا، بہت مشکل ہو گیا. ہر بار وہ یہی کہتے تھے کہ اپنے رب سے پوچھ لیجئے کہ وہ گائے کیسی ہو، اس کی صفت کیا ہو، اس کا رنگ کیسا ہو، اس کا کس طرح کی ہو. تو دھیرے دھیرے ان کا جو یہ کام تھا زبردست مشکل ہو گیا. تو اس کے بعد جب انہوں نے گائے ذبح کری اور گائے کو جب ذبح کر لیا اور پھر اس گائے کا جو ایک ٹکڑا تھا وہ مرے ہوئے شخص کو لگایا گیا. تو پھر انہوں نے پوچھا کہ تجھے کس نے قتل کیا ہے، اس مرے ہوئے شخص سے پوچھا. تو اس نے اپنے بھتیجے کی طرف اشارہ کرتے ہوئے کہا کہ اس نے، اور وہ یہ کہہ کر مر گیا. تو اس طرح قاتل کو اس کے مال میں سے کچھ بھی حصہ نہیں دیا گیا. اور یہ بعد میں ہمیشہ بھی یہی اصول رہا، اور قاتل کو مقتول کا وارث نہیں ہو سکتا. یعنی کہ ہمارے شریعت میں بھی یہی چیز موجود ہے کہ کوئی بھی قاتل جس نے اپنے وارث یعنی جس کو قتل کیا ہے وہ مقتول ہے، تو جس کو قتل کیا ہے اس کی پراپرٹی میں سے قاتل کو کوئی حصہ نہیں ملتا. اور یہی شریعت ان کے میں بھی موجود تھی. لیکن بات تو دراصل یہ ہے کہ سوالات، کثرت سوال سے یہاں پہ ہمیں عبرت ملتی ہے کہ جب اللہ کے کوئی بھی احکامات ہم کو مل جائیں تو ہمیں کثرت سوالات سے بچنا چاہیے. بنی اسرائیل نے جو غلطی کی ہے وہ ہم سب نہ کریں. تو اس سے یہ پتہ چلتا ہے کہ اللہ تعالیٰ کے احکامات کو ایز اٹ از ایز لینا چاہیے، سمپلی وے میں لینا چاہیے. بال کی کھال نہیں اتارنی چاہیے، بہت زیادہ نکتہ چینیاں اور بہت زیادہ سوالات اور جوابات بھی نہیں کرنے چاہیے، کیونکہ اس سے دین میں مشکل ہو جاتی ہے، مشکلات ہوتی ہے. انہیں کہا گیا تھا کہ گائے ذبح کرو تو وہ کر دیتے، بات پوری ہو جاتی. لیکن انہوں نے سوال کر کر کے گائے کی تلاش اور گائے کو ذبح کرنے کا عمل اپنے لیے بہت مشکل بنا دیا. لیکن یہ بھی ایک طرح سے اللہ کے احکامات کے ساتھ کھیلنا ہے. ہمیشہ جب کبھی بھی اللہ کا کوئی حکم ماننا مشکل ہونے لگے
तो अपने आप से कहा करे रदियतु बिल्लाहि रब्बं, रदियतु बिल्लाहि रब्बं, रदियतु बिल्लाहि रब्बं। अल्लाह सच्चा है, अल्लाह की बात सच्ची है, अल्लाह का हुक्म सच्चा है। मुझे अल्लाह का हुक्म मानना है और मुझे अल्लाह के हुक्म मानने में जो मुश्किल हो रही है, लेकिन असल तो हक ही यही है। उसी का फैसला है, उसी के मुताबिक उसका फैसला होगा। लिहाजा मुझे मुझे इससे इनकार नहीं करना चाहिए। मुझे वही करना है जो मेरे रब ने मुझे से चाहता है। मुझे अपने आप को तब्दील करना है, अल्लाह की किताब को नहीं। इसलिए अल्लाह ताला के अहकामात पर बहुत ज़्यादा बहस मुबाहिसा नहीं करना चाहिए। जो कहा गया है, बस उसको कर लिया जाए, वरना बनी इसराइल जैसा हो सकता है हमारा भी अंजाम हो जाए। तो मूसा अलैहिस्सलाम ने कहा ना, फ़अफ़अलू मा तुमरून, बस तुम करो जो तुम हुक्म दिए गए हो। तो जो हुक्म दिया गया बस उसको बजा लाना है, बस उसको कर गुज़रना है। ज़्यादा सवालात नहीं करना है ना। लेकिन आज हमारे यहाँ क्या होता है, कोई हुक्म आता है और फिर कोई वाज़ेह अहकाम है अल्लाह की आयत में, वाज़ेह बात बिल्कुल बिल्कुल साफ़ है, लेकिन उसके बावजूद भी लोग नहीं मानते हैं और कहते हैं अगर और मगर और ऐसा कैसे और वैसा कैसे, और फिर तमाम तरह के बहस और मुबाहिसा और हीले और बहाने और अपनी अपनी परेशानी बताना, मेरे साथ तो ये है, अगर हम जो है बिज़नेस में सूद नहीं लेंगे या हम लोन नहीं लेंगे या हम जो है बैंक में जॉब नहीं करेंगे या फिर हम ऐसा कुछ नहीं करेंगे तो फिर हमारा क्या होगा। इस तरह से अपने तकलीफ़ें और अपनी परेशानियाँ बता बता के अल्लाह की आयत से मुंह मोड़ लेते हैं। तो जैसे बनी इसराइल ने किया ना, वो उन्होंने ज़बान से अल्लाह का इनकार किया, उन्होंने ज़बान से रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का इनकार किया। वो काज़िबीन थे, वो झूठे थे, वो इनकार करने वाले थे, वो काफ़िर थे। लेकिन आज उम्मत मुस्लिमा भी तो यही कर रही है ना। उम्मत मुस्लिमा क्या करती है? उम्मत मुस्लिमा ज़बान से तो कहती है हम मुसलमान हैं, हम ईमान लाए हैं, लेकिन जहाँ अल्लाह के कड़े अहकामात आते हैं, जहाँ अल्लाह की कोई ऐसी बात आ जाती है जो अपनी ख्वाहिशात के खिलाफ होती है, तो फिर कहते हैं हम नहीं मानते। हम अमल ही नहीं करते हैं, हमसे हो नहीं सकता है, हम दुनिया में रहते हैं, हम दुनिया को लेके हमें चलना पड़ेगा, हम दुनिया से कट कर नहीं रह सकते हैं। यानी अपनी ख्वाहिशात को पूरा करने के लिए अल्लाह के अहकामात का इनकार कर देते हैं। उम्मत मुस्लिमा का आज ये रवैया है। अल्लाह सुब्हानहू व तआला हम सबको कुरान करीम के हर अहकामात पर अमल करने की तौफीक अता फरमाए। आमीन या रब्बल आलमीन। आयत 72, वइज़ क़तलतुम नफ्सन फ़द्दरअतुम फ़ीहा वल्लाहु मुख़रिजुम मा कुंतुम तख्तुमून। और जब तुमने एक शख्स को कत्ल कर दिया था, फिर तुमने उसके बारे में झगड़ा किया। अल्लाह ताला इसे ज़ाहिर करने वाला था जिसे तुम छिपाते थे। तो फ़द्दरअतुम फ़ीहा के मायने यही है कि तुमने उसके बारे में इख्तिलाफ किया, कि तुमने इसके बारे में झगड़ा करने लगे। उनका झगड़ना ये था कि बाज़ ने कहा उसे कत्ल किया है तुमने, और बाज़ ने कहा हमने कत्ल नहीं किया है इसको, बल्कि एक दूसरे पर उसका कत्ल का इल्ज़ाम डालने लगे। एक शख्स ने कहा तुमने इसको कत्ल किया, दूसरे ने कहा हमने नहीं किया, तुमने किया, तीसरे ने कहा तुमने किया है, हमने नहीं किया। इस तरह से आपस में खूब झगड़ा हुआ। फद्दरातुम फ़ीहा, कि तुमने आपस में खूब इख्तिलाफ किया, खूब झगड़ा किया। फ़कुल्ना इद्रिबूहु, तो अल्लाह सुब्हानहू व तआला ने हुक्म दिया कि तुम क्या करो, अब इस गोश्त को टुकड़े को मारो। तो अगली आयत में देखते हैं, लेकिन अल्लाह सुब्हानहू व तआला फरमा रहे हैं वल्लाहु मुखरिजुम मा कुंतुम तक्तुमून, कि अल्लाह सुब्हानहू व तआला तो ज़ाहिर करने वाला था, निकालने वाला था जो तुम छुपा रहे थे। यानी कि जो जिसने कत्ल किया था ना, वो छुप गया था, उसने अपने आप को छुपा लिया था ना। लेकिन दुनिया में इंसान चाहे जिसकी नज़रों में छुप छुप के कत्ल कर ले और मार दे, किसी को ख़त्म कर दे, या ऐसे कोई काम करके दूसरे को किडनैप करा के उसको जो है मर्डर करा दे, कुछ भी करा दे, डकैती करवा दे, चोरी करवा दे, तमाम तरह के गुनाह जो कर दे, जो समझता हमें कोई नहीं देख रहा है जो शख्स, तो अल्लाह सुब्हानहू व तआला तो उसको जानने वाला है ना। अल्लाह ताला तो हर चीज़ ले आएगा, हर काम, इंसान की हर छोटी से छोटी बात अल्लाह ताला सब कुछ ज़ाहिर कर देगा। जिसको वो उस शख्स ने इस वजह से छुपा दिया था कि हम इसकी प्रॉपर्टी हासिल कर लेंगे अपने चचा की, और हम मालिक बन जाएँगे और हमारी दुनिया की ज़िंदगी बहुत बेहतरीन कटेगी। और उसको उसने अपने कत्ल का जो इल्ज़ाम था छुपा के दूसरों पे डाल दिया। वल्लाहु मुखरिजुम मा कुंतुम तक्तुमून, और अल्लाह ताला तो उसको ज़ाहिर करने वाला था जो तुम छुपा रहे थे, जो तुम छुपाते चले जा रहे थे ना। कैसी ज़बरदस्त उसकी रुसवाई हुई। क़यामत तक की हम लोग उसके बारे में पढ़ते रहेंगे। और कभी भी कोई भी गुनाह करके ये नहीं सोचना चाहिए कि हमें किसी ने नहीं देखा, लेकिन अल्लाह ताला देखता है। जो इंसान छुपाता है अल्लाह उसको ज़ाहिर भी करेगा। क़यामत के दिन की रुसवाई ऐसी रुसवाई होगी कि इंसान कहेगा ए रब, तू मुझको जहन्नुम में डाल दे, मुझसे आज की ये रुसवाई नहीं बर्दाश्त हो रही। आदम अलैहिस्सलाम से लेके क़यामत तक के सारे लोग मेरे कच्चे चिट्ठे देख रहे हैं। एक बड़ी सी वीडियो चल रही है मेरी ज़िंदगी की, जहाँ मैंने बुरे-बुरे काम किए थे, जो मैंने छुप के किए थे, कि मुझे कोई नहीं देख रहा है। आज तो पूरी दुनिया देख रही है, मेरा रब भी सबको दिखा रहा है। अल्लाह इससे बेहतर है कि तू मुझको जहन्नुम में डाल दे। हालाँकि वो जहन्नुम जानता होगा कितनी बुरी और कितनी बदतरीन जगह है। लेकिन उसको जहन्नुम में जाना मंज़ूर हो जाएगा, लेकिन वो
रुसवाई का अजाब नहीं झेल पाएगा। अल्लाह सुब्हानहू व तआला हम सबको इस तरह की रुसवाइयों के अजाब से बचा ले, आमीन या रब्बल आलमीन। आयत 73, फ़कुल नदरिबूहु बिबादिहा कज़ालिका युहिल मौता युहिल्लाहुल मौता व युरीकुम आयातिही लअल्लकुम ताक़िलून। चुनांचे हमने कहा कि तुम इस गाय का गोश्त का एक टुकड़ा उस मुर्दे को मारो, अल्लाह ताला इसी तरह मुर्दों को जिंदा करेगा और वो तुम्हें अपनी कुदरत की निशानियां दिखाता है, खुली खुली निशानियां दिखाता है, ताकि तुम अकल से काम लो, ताकि तुम समझो। अल्लाह सुब्हान तआला ने उनको हुक्म दिया, फ़कुल नदरिबूहु बिबादिहा, कि हमने कहा इस गाय के जो गोश्त का एक टुकड़ा है, इसे मकतूल को मारो, यानी मरे हुए शख्स को मारो, यानी उस गाय का एक कोई भी आज़ा हो, कोई भी एक हिस्सा हो, उसको उसके जरिए से एक जो मरा हुआ शख्स है उसको लगाओ। तो इस मुआजिजे को जब उन्होंने देखा तो फिर क्या हुआ, जैसे ही उन्होंने उस गाय के टुकड़े को उस मरे हुए शख्स पे लगाया तो फिर मुर्दा जिंदा हो गया, उठ कर बैठ गया। कज़ालिका युहिल्लाहुल मौता, अल्लाह ताला इसी तरह मुर्दों को जिंदा करेगा, यानी उन्होंने जब इससे उसके साथ लगाया, यानी उस गाय के टुकड़े को उस मुर्दे के साथ लगाया तो वो जिंदा होकर बैठ गया, और उन्होंने इसके जिंदा होने का जो मुशाहिदा भी किया, तो इससे अल्लाह ताला ने उन्हें अपनी कुदरत और मुर्दों को जिंदा करने की ताकत का भी जलवा दिखाया। और उसे एक तरफ से तो अल्लाह ताला ने आखिरत की भी दलील भी बना दिया, और दूसरी तरफ से इसे उनके बाहिमी झगड़े का और हट धर्मी का भी फैसला कर दिया। यानी कि इस वाक़े से अल्लाह सुब्हान ताला ने दो बहुत अहम इम्पॉर्टेंट जो है लोगों को इबरत दी। पहला ये था कि ताकि लोगों को जो जितने भी आंखों से जो देख रहे हैं उनको यकीन आ जाए कि आखिरत का दिन क्या है, सच्चा है, होकर रहने वाला है। और दूसरा ये कि उनके आपस की जो झगड़ा लड़ाई है, इख्तिलाफात, उसको ख़त्म कर दिया जाए। यानी बनी इसराइल के सामने आप जो है इस तरह का जो मुर्दे को दोबारा जिंदा करके उठा देना इसलिए था ताकि उनको आखिरत पर ईमान लाने के लिए बिल्कुल वाज़ेह निशानियां मौजूद हो और वो देख ले, उस पर यकीन कर ले। वो अपने आंखों के सामने मुर्दे को जिंदा करके दोबारा उनके सामने जो उठाया गया, ताकि उनका आखिरत पे बिल्कुल यकीन हो जाए, जिसे कहते नहीं आइनुल यकीन, यानी आंखों देखा यकीन आ जाए। लेकिन अफसोस इसके बावजूद भी उन्होंने अल्लाह की आयत को नहीं माना और अपनी जिद और हट धर्मी की वजह से उस पर वो डटे रहे। अल्लाह की आयत बिल्कुल सामने वाज़े खुली खुली उन्होंने देखी। वयुरीकुम आयातिही लअल्लकुम ताकिलून, यानी उन्होंने अपनी आंखों से देखा, जैसे ही गोश्त का जो गाय का गोश्त का टुकड़ा था वो एक मरे हुए शख्स को लगाया गया और वो शख्स उठकर बैठ गया और उसने बता दिया कि मेरा जो है कत्ल किसने किया है। इसके बावजूद फिर क्या है, ये इतनी बड़ी निशानी देखने के बावजूद फिर भी वो उससे फिर गए। सूरह बकरा में 5 मकामात पर मुर्दों को जिंदा करने का जिक्र मिलता है। अल्लाह ताला ने इस सूरत में मुर्दों को जिंदा करने के 5 मकामात पर जिक्र फरमाया है। पहला, बनी इसराइल ने जब मूसा अलैहिस्सलाम से कहा कि जब तक हम अल्लाह को सामने ना देख लेंगे तो ईमान नहीं लाएंगे, तो इस मौके पर अल्लाह ने उन्हें मौत दी और उसके बाद फिर अल्लाह ताला ने मूसा अलैहिस्सलाम की दुआ से उनको जिंदा भी किया। दूसरा, ये गाय वाला वाकया है। तीसरा, उन लोगों का वाकया है जो हजारों की तादाद में थे और मौत के डर से अपने घरों से निकल भागे थे। चौथा वाकया उस शख्स का है जो एक बस्ती के ऊपर से गुजरे थे, जो बस्ती अपने छतों के बल पर गिरी पड़ी हुई थी। गुजरने वाले शख्स के बारे में कहा जाता है कि उज़ैर अलैहिस्सलाम थे। पांचवा, हजरत इब्राहिम अलैहिस्सलाम और चारों परिंदों का जो वाकया है। तो सूरह बकरा में अल्लाह तबारक तआला ने मुर्दों को जो जिंदा करके दोबारा उठाने पर लोगों को यकीन दिलाया, यानी आखिरत के दिन पर लोगों को यकीन दिलाया है कि इस तरह से जब एक मरा हुआ शख्स दोबारा जिंदा होता है, और अल्लाह ताला ने किया, लोगों को मुशाहिदा भी कराया। इसी तरह अल्लाह को कोई मुश्किल नहीं है कि अल्लाह ताला एक मिट्टी के जर्रात से एक इंसान को उठा के खड़ा कर दे। अल्लाह ताला ने इसी तरह से मुर्दा होने के बाद ज़मीन को भी ज़िंदा कर देने की भी इस बात की दलील करार दी है कि इस बात पर भी वो कादिर है कि लोग इसी तरह क़यामत के दिन भी उठा के खड़े कर दिए जाएंगे, कि जैसे एक इंसान की हड्डियां गल सड़ जाने के बाद उसके जिस्म को भी दोबारा ज़िंदा कर दिया जाए। सूरह यासीन में भी आता है, आयत 33 टू 35, व आयातुल लहुमुल अर्दुल मैतता अहयैनाहा व अखरजना मिनहा हब्बन फमिनहु याकुलून व जअलना फीहा जन्नातिन मिन नखीलिन व अनाबिन व फज्जरना फीहा मिनल उयून लियअकुलू मिन समरिही व मा अमिलतहु अयदीहिम अफला यशकुरून। और एक अजीम निशानी उनके लिए मुर्दा जमीन के है कि हमने उसको जिंदा किया है और उसमें से अनाज उगाया है हमने, और फिर ये कि उसमें से ये खाते भी हैं, और हमने इस जमीन में खजूरों और अंगूरों के बागात भी पैदा किए हैं, हमने इसमें चश्मे जारी किए हैं ताकि ये उनके फल खाएं, और उनके हाथों से जो उनके हाथों ने उसको नहीं बनाया है, तो क्या फिर ये शुक्र नहीं अदा करते हैं। तो अल्लाह तबारक तआला ने बहुत सी जगह पे कुरान करीम में मुर्दा ज़मीन को जिंदा करने की भी आयत नाजिल फरमाई है।
ताकि लोग आखिरत पर यकीन करें कि जैसे जिस तरह से एक मुर्दा ज़मीन एक बारिश होते के साथ ही ज़िंदा हो जाती है, लहलहाने लगती है, उसमें हरे भरे दरख्त निकल आते हैं, इसी तरह अल्लाह तबारक ताला क़यामत के दिन भी कब्रिस्तानों से ज़िंदा इंसान को उठा देंगे। सारे मरे हुए इंसान दोबारा उठ के खड़े हो जाएंगे, सारे के सारे लोग अल्लाह की तरफ लौट आएंगे। लेकिन अफसोस कि सब लोग इस चीज़ को भुलाए बैठे हैं। सारे लोग इसी चीज़ को हकीकत को भुलाते हैं, आखिरत के दिन को भुलाते हैं। आज काम ऐसे करते हैं कि जैसे उनको कभी मरना ही नहीं है। ऐसी ढिठाई, ऐसा झूठ, ऐसा तकब्बुराना रवैया, अल्लाह को भुला देना। अल्लाह नहीं याद रहता है। अल्लाह कब याद आता है? जब बहुत परेशानी होती है। फिर अल्लाह के जो बंदे होते हैं उनको वो याद आते हैं। यानी पीर वली औलिया कहते हैं अहलुल्लाह इनके पास चलें, वलीउल्लाह इनके पास चलें। उनके मुसीबत और परेशानी आने के बावजूद भी उनको सिर्फ सिर्फ अल्लाह नहीं याद आता है, अल्लाह के बंदे याद आते हैं, है ना? तो अल्लाह सुब्हान ताला सिर्फ और सिर्फ अल्लाह ही हकदार है, सिर्फ उसी को पुकारा जाए, उसी से मदद मांगी जाए और उस पर यकीन रखा जाए कि अल्लाह वाकई सबको उठा के जिंदा कर देगा आखिरत के दिन। और जब इंसान सारे मर जाता है तो उसको दुनिया में क्या हो रहा है कुछ भी पता नहीं होता है। चाहे कितनी ही बड़ी हस्ती हो, चाहे वो अंबिया हो, चाहे कोई भी हस्ती हो, चाहे वो बहुत बड़े वली हो, वलीउल्लाह हो। जैसे एक इंसान सो रहा होता है बेखबरी की नींद और उसके आसपास कमरे में क्या हुआ उसको उसको कुछ भी खबर नहीं है। इसी तरह से एक शख्स जब मर गया, फौत हो गया, उसको इस दुनिया में क्या हो रहा है कुछ खबर नहीं। और इसकी दलील ईसा अलैहिस्सलाम के बारे में जब हम लोग पढ़ेंगे तो अल्लाह सुब्हानहू तआला पूछते हैं कि ए ईसा, कि तुम्हारे बाद जो है लोगों ने तुमको बेटा कहा, क्या तुमने उनको इस बात को करने को कहा था कि तुझको वो बेटा माने अल्लाह का? तो ईसा अलैहिस्सलाम कहते हैं कि ए अल्लाह, तू जानता है, जब तक मैं इनमें रहा तो मैंने तो सिर्फ सिर्फ तेरी ही इबादत करने का हुक्म दिया, और जब मैं फौत हो गया तो मुझे नहीं खबर कि मेरे पीठ पीछे यहाँ क्या हुआ दुनिया में। तो इस तरह से इस बात की दलील है कि अंबिया को भी नहीं पता कि दुनिया में क्या हो रहा है। कोई नहीं जानता, जो दुनिया से चला गया अब आलम बरज़ख का पर्दा है। और रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के बारे में जो बात कही जाती है बस वो अल्लाह बेहतर जानता है कि जब हम दुरूद पढ़ते हैं तो उनको वो दुरूद पहुंचाया जाता है। वो क्या कैफियत है, वो किस तरह से होता है, ये सब गैब की खबरें हैं। इन सब के पीछे हमें नहीं लगना है। मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को ऐसा मुकाम और मर्तबा नहीं देना है जैसे नसारा ने ईसा अलैहिस्सलाम को दे दिया था। खुद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इस चीज़ से मना किया है और उन्होंने मना कर दिया था कि मेरी जो कब्र है उसको इस तरह से कच्चा रखा जाए और कोई भी इस पे पक्का इमारत ना बनाई जाए और बिल्कुल सादगी से रखा जाए। कुछ अपने दुनिया से रुखसत होने से पहले उन्होंने लोगों को इस चीज़ से मना कर दिया था। ज़बरदस्त वसीयत कर दी थी आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने। जानते थे ना कि इंसान के पीछे एक क्या है, सबसे बड़ा उसका दुश्मन जो लगा हुआ है इब्लीस जिसे कहते हैं, लोगों को गुमराह कर देता है। नूह अलैहिस्सलाम की जब कौम में लोग अच्छे लोग फौत हो गए, ख़त्म हो गए, तो लोगों ने तस्वीरें बनाई। तस्वीर से धीरे-धीरे क्या हुआ नतीजा कि बुत परस्तिश शुरू हो गई। तो किसी पेड़ को पूजा और इतना पूजा कि उसकी बुत बन गई। किसी दरख्त को और किसी पेड़ को, किसी पहाड़ को, किसी सूरज को इस तरह से पूजा परस्तिश की, फिर उसकी अक्स बन गए, मुजस्समे बन गए, स्टैचूज़ बन गए। अब रोज़-रोज़ सूरज के पास तो इबादत नहीं हो सकती है। अब रात में इबादत करनी सूरज देवता की, तो सूरज देवता तो मौजूद नहीं है, तो उनके मुजस्समे बना के रात में भी उनको पुकारो। तो शैतान तो पीछे लगा है हर तरह से। शैतान ने खूब-खूब वसवसे डाले और लोग बहके भी। लेकिन अल्लाह के जो मुखलिस बंदे होते हैं, अल्लाह वाले जो होते हैं, जिनको अल्लाह सुब्हान तआला अपने दीन के लिए चुनता है, जिनको अल्लाह सुब्हान तआला कुरान पढ़ने, पढ़ाने और समझने की तौफीक देता है, फिर उनको कोई भी ऐसे जो इब्लीस है या इस तरह के लोग नहीं बहका सकते हैं। आयत 74 सुम्मा क़सत क़ुलूबुकुम मिन बादि ज़ालिका फ़हिय कल हिजारा औ अशद्दु क़स्वा व इन्न मिनल हिजारति लमा यतफ़ज्जरु मिन्हुल अनहार व इन्न मिन्हा लमा यशक़्क़क़ु फ़यख़रुजु मिन्हुल मा व इन्न मिन्हा लमा यहबितु मिन ख़श्यतिल्लाह व मल्लाहु बिग़ाफ़िलिन अम्मा तअमलून। फिर इसके बाद तुम्हारे दिल सख्त हो गए, चुनाचे वो पत्थरों के मानिंद है या उनसे भी ज्यादा सख्त। और बेशक कुछ पत्थर वो हैं कि उनसे नहरें फूटती हैं, और बेशक उनमें से कुछ हैं कि वो फट पड़ते हैं और फिर उनमें से पानी निकल आता है, और बेशक उनमें से कुछ वो हैं कि अल्लाह के डर से गिर पड़ते हैं, और अल्लाह ताला इससे गाफिल नहीं है जो तुम अमल करते हो। यानी अल्लाह सुब्हान ताला बनी इसराइल से खिताब फरमा रहे हैं कि तुमने इतने बड़े बड़े चीजें देखने के बाद, बड़े बड़े वाकयात देखने के बाद, बड़े बड़े चीजों का मुशाहिदा करने के बाद तुम्हारे दिल क्या हो गए, उसके बाद फिर भी सख्त हो गए, पत्थरों की तरह सख्त हो गए। तुम्हारे दिल तो चाहिए था कि एकदम नरम हो जाते, मोम हो जाते। एक मुर्दा शख्स को जिंदा किया तुम्हारी आंखों के सामने, और तुमने क्या रवैया किया, तुम्हारे दिल सख्त हो गए।
जब मकतूल के साथ गाय के टुकड़े को लगाया गया तो वो शख्स जो था उठ कर बैठ गया, इस तरह बिल्कुल जिंदा सलामत था कि जिस तरह पहले होता था। तो उससे पूछा गया कि तुझे किसने कत्ल किया है? तो उसने जवाब दिया कि मेरे भतीजे ने ही मुझे कत्ल किया है। फिर उसकी रूह को कब्ज कर लिया गया, और जब अल्लाह ने दोबारा उसकी रूह को कब्ज कर लिया तो उसके भतीजे ने कहा, अल्लाह की कसम, हमने तो इसे कत्ल नहीं किया। यानी हक को देखने के बाद उन्होंने इसे झुटला दिया। तो अल्लाह ताला फरमाता है, सुम्मा कसत कुलूबकुम मिन बादी ज़ालिका, फिर इसके बाद तुम्हारे दिल वैसे ही सख्त हो गए। यानी ऐसा जबरदस्त तुमने इनकार किया। तवील मुद्दत से गुजरने के साथ साथ बनी इसराइल के दिल भी इस कदर सख्त हो गए कि आयात, मुआजजात मुशाहिदा करने के बावजूद उन्होंने नसीहत को, वाज को कबूल नहीं किया। और ये दिल की सख्ती में उनके ऐसे सख्त थे कि जैसे पत्थरों की तरह थे, जिनकी सख्ती का कोई इलाज नहीं है, बल्कि ये पत्थरों से भी ज्यादा सख्त हैं। क्योंकि पत्थरों से भी क्या होते हैं, चश्मे और नहरें बह पड़ते हैं। बास पत्थरों से तो पानी तक निकल आता है, गोया कि वो जारी भी ना हो। और बास पत्थर अल्लाह के डर से और अल्लाह के खौफ से गिर भी पड़ते हैं, पहाड़ों की चोटियों से ऊपर से नीचे आ जाते हैं। तो यहाँ पर तीन तरह के पत्थरों की बात हो रही है। एक किस्म के पत्थर ऐसे हैं जिनके अंदर से नहरें जारी हो जाती हैं। यानी जब बनी इसराइल ने पानी मांगा तो अल्लाह तबारक तआला ने एक पत्थर से 12 चश्मे जारी कर दिए थे ना, यानी पत्थरों से चश्मे भी जारी हो जाते हैं, नहरें फूट पड़ती हैं। फिर दूसरी किस्म के जो पत्थर ऐसे हैं जो अपने आप अल्लाह के खौफ से फट पड़ते हैं और उसके अंदर भी पानी मौजूद रहता है। फिर तीसरे किस्म के पत्थर ऐसे हैं जो लरज लरज जाते हैं, जलजले आ जाते हैं तो वो ऊपर से नीचे आ जाते हैं, गिर पड़ते हैं अल्लाह के खौफ से। तो पत्थरों में भी कहा जाता है कि शऊर होता है, समझ होती है, उनके अंदर अल्लाह का खौफ होता है पत्थरों के अंदर। लेकिन इंसान के दिल इससे भी ज्यादा सख्त हो गए हैं, वो नहीं डरते हैं। अल्लाह की तो मखलूक बहुत अल्लाह से डरती है, बहुत अल्लाह से थर थर कांपती रहती है। और इस बात को आज अगर देखा जाए तो साइंस भी कहती है, लेकिन बहरहाल हमें कुरान मजीद को साइंस के नज़रिए से नहीं देखना है। लेकिन कुछ चीज़ें ऐसी होती हैं जो पता चलती हैं कि साइंस क्या कहती है। आप सोचें कि जैसे कहते हैं ना, मुशाहिदा, इबरत, इस नज़र से अगर हम देखते हैं तो साइंस बताती है कि पत्थर भी जो होते हैं उनमें भी थोड़ा शऊर होता है और वो वाइब्रेट होते हैं। कुछ अरसे के बाद जो पहाड़ होते हैं वो खिसक कर थोड़ा आगे खिसक आते हैं, यानी कि थोड़ा थोड़ा मोशन उनके अंदर चलना भी होता है उनके अंदर। वो सुनते भी हैं, उनके अंदर एहसासात भी होते हैं। और अल्लाह की तस्बीह, यानी कि अल्लाह सुब्हान ताला की सुभान अल्लाह व बिहम्दी की जो तस्बीह है अल्लाह तबारक ताला की, हर मखलूक करती है। हर मखलूक, दुनिया की तमाम चीज़ें अल्लाह की हम्द और तस्बीह करती हैं, जिसमें से पत्थर भी अल्लाह की तस्बीह भी करते हैं। सही मुस्लिम में 2277 में आता है, रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, यकीनन मैं मक्का के उस पत्थर को जानता हूँ जो बास से कब्ल मुझे सलाम किया करता था, बिलाशुबह मैं इसे अब तक पहचानता हूँ। यानी कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को नबूवत से पहले एक पत्थर था जो सलाम करता था, और आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम उसको पहचानते भी थे। फिर इसी तरह से एक और मुस्नद अहमद की हदीस में है 247 में कि हजर अस्वद के बारे में हदीस में आता है कि रोज़े क़यामत जिसने ईमान के साथ और सवाब की नीयत से उसको बोसा दिया तो वो इसके हक में गवाही भी देगा, हजर अस्वद। हम्म, तो इससे पता चलता है कि इनके अंदर भी शऊर होता है और ये अल्लाह के डर से थर थर कांपते हैं। और बंदों को भी चाहिए कि अल्लाह की खशियत, अल्लाह का डर इख्तियार करे। अल्लाह ताला अपने बंदों को तरगीब देते हैं कि अपने रब के लिए उनके दिल डर से कांपे और खशियत इलाही इख्तियार करें। सिर्फ अल्लाह से डरे, दुनिया में किसी से ना डरे, सिर्फ अल्लाह का डर इख्तियार करें और तकवा इख्तियार करें। देखें, जब अल्लाह से मुलाकात की उम्मीद होती है तो फिर इंसान के दिल में ये डर होता है कि हम अपने रब से जाके क्या जवाब देंगे कि हम इतने बुराइयां करके आए हैं। पहली चीज तो मुलाकात की उम्मीद हो, फिर अल्लाह से कि उससे जब मुलाकात हो तो हम क्या कहेंगे कि हमने क्या लाए हैं। तो फिर इस डर की वजह से वो दुनिया में रह के अच्छे अच्छे काम करे, नाफरमानियों से बचे, अल्लाह के अहकामात को बजा लाए, ईमान लाए, अमल सालेह करे, वतवासो बिल हक करे, वतवासो बिस सब्र करे। तो ये चार चीजें हैं कामयाबी की, इसमें बहुत बड़ी कामयाबी है इन चार चीजों में। तो अल्लाह सुब्हान तआला चाहते हैं कि इंसान अल्लाह से डरे और अल्लाह का तकवा इख्तियार करे। लेकिन इंसान और बनी इसराइल भी, और बनी इसराइल जैसे हमारे दरमियान में भी जो मौजूद हैं, जो आज के बनी इसराइल जिन्हें कहते हैं, कह सकते हैं ना, लेकिन बनी इसराइल के जैसे उनका रवैया है, लेकिन है तो वो उम्मत मुस्लिमा, लेकिन काम उनके बनी इसराइल से भी ज़्यादा बुरे हैं। आंखों से मुशाहिदा भी करते हैं, अल्लाह की आयत को देखते हैं, अल्लाह की वहदानियत को भी जानते हैं, अल्लाह एक है ये भी जानते हैं। सब कुछ जानते बूझने के बाद भी अल्लाह की आयत का इनकार करते हैं और गुनाहों में मुलव्वस होते रहते हैं।
तो याद रखिए कि दिलों की सख्ती की वजह से अल्लाह की नाफरमानी होती है। दिल सख्त होते हैं तो अल्लाह की नाफरमानी होती है और बार बार नाफरमानी होती है। जब इंसान एक दफ़ा नाफरमानी करता है तो इंसान पर कोई परेशानी हो ही हो, फिर जब वो दोबारा गलत काम करता है, तो कम परेशानी होती है। यानी कि जब पहली बार काम करता है तो थोड़ी परेशानी होती है और दोबारा वो बुरा काम या गुनाह करता है तो कम परेशानी होती है और तीसरी और चौथी बार अगर वो करता है तो परेशानी होना ख़त्म हो जाती है ना। नफ्स लव्वामा जो होती है, मलामत करने वाली, वो भी फिर ख़त्म हो जाती है। नफ्स अम्मारा उसको दबा देती है। फिर इंसान उस गुनाह में मज़े लेने लगता है। फिर एक वक़्त आता है कि इंसान के अंदर से उस गुनाह होने का एहसास भी मिट जाता है। और फिर दिल मरीज हो जाता है और जब दिल मरीज हो जाता है तो इंसान को हिदायत नहीं मिलती है। फिर कोई उसको लाख समझाए, कुरान मजीद की बड़ी बड़ी आयात पढ़ा दे, कुरान उसके हलक के नीचे नहीं उतरता, उसके दिल में नहीं उतरता और ना ही उसके अमल में कोई तब्दीली होती है। इसलिए इस बात से डरते रहना चाहिए कि अल्लाह ताला की नाफरमानियां जहर कातिल की तरह से हैं जो इंसानियत के लिए हलाकत का बायस है। बनी इसराइल ने जब अल्लाह की बात नहीं मानी तो इसमें बहुत सी तावीलें की, तो फिर क्या हुआ, उनके दिल भी क्या हो गए, सख्त हो गए। गोया कि वो पत्थरों की तरह हैं कि उससे भी ज्यादा सख्त है। व इन्ना मिनल हिजारा लमा यतफज्जरु मिनहुल अनहार, और बेशक बास पत्थर तो वो हैं कि उनमें से नहरें भी फूट पड़ती हैं। कभी आपने किसी पहाड़ी रास्ते में या किसी जगह पर देखा है जहां से चश्मे निकल रहे होते हैं? यूं लगता है जैसे ये हमारी आंखों की तरह जमीन के आंसू हैं। जैसे हम रोते हैं तो क्या होता है, ये झड़ियां लग जाती हैं, छोटे छोटे सुराख से आंसू निकलने लगते हैं। इसी तरह अगर आप चश्मे के निकलने के मुकाम को पहुंचे कि कहाँ से निकल रहा है ये पानी, तो उसके निकलने का जो मुकाम होता है वो बहुत छोटा सा होता है। तो जैसे जमीन भी अल्लाह के खौफ से रो रही हो। कुछ लोग ऐसे होते हैं कि उनके सामने अल्लाह की बात की जाए तो वो रोने लगते हैं, उनकी खालें नरम पड़ जाती हैं और उनके आंसू बहने लगते हैं। कुरान उनके दिलों पर असर करता है। व इन्ना मिनहा लमा यशक्ककु फयखरुजु मिनहुल मा, और बेशक उनमें से कुछ ऐसे होते हैं कि जब वो फट पड़ते हैं तो उनमें से पानी निकल आता है। यानी कुछ लोग बज़ाहिर ऐसे लगते हैं जैसे बहुत जिद्दी हों और उन पर कोई बात असर नहीं करेगी और वो गलत चीज़ों में पड़े हुए होते हैं और उनके दिल भी कुछ सख्त होते हैं। लेकिन फिर ऐसा वक्त आता है कि अल्लाह की बात उनके अंदर इस तरह से जाती है जैसे उनके दिल लरज रहे हैं और बाज औकात बड़े बड़े पत्थर भी टूट जाते हैं और नीचे से पानी के नहरें निकल आते हैं। तो ऐसे लोगों के अंदर खैर का पोटेंशियल होता है और वो अंदर दरियाएं होती हैं उनके दिलों में। लेकिन और जहालत की, गफलत की, दुनिया की मोहब्बत की एक दीवार उनके बीच में आती है। लेकिन जब कुरान से उनका सामना होता है तो उनकी ज़ात में, उनकी उस दीवार में क्रैक आती है और अंदर की खैर फूट पड़ के बाहर निकल आती है। अंदर की जो खैर होती है वो फूट कर बाहर निकल आती है और बड़े पैमाने पर दूसरों को भी वो सैराब करते हैं। व इन्ना मिनहा लमा यहबितु मिन खश्यतिल्लाह, और उनमें से कुछ ऐसे लोग होते हैं कि अल्लाह के खौफ से गिर पड़ते हैं तो लैंडस्लाइड होती है। यानी कुछ लोग ऐसे होते हैं जो एक अरसे तक नाफरमानी की जिंदगी बसर कर रहे होते हैं। फिर एक वक्त आता है कि अल्लाह की आयत उनके दिल पर असर करती है और वो अल्लाह के सामने गिर पड़ते हैं और अल्लाह के सामने आजिज़ी का इजहार करते हैं और रोते हैं और अपनी पिछली जिंदगी के गुनाहों की माफ़ी भी मांगते हैं और फिर अल्लाह के रास्ते पर चल पड़ते हैं। तो अल्लाह सुब्हान तआला से दुआ है कि अल्लाह तबारक तआला हम सब के दिलों को बिल्कुल मोम बना दे, बिल्कुल सॉफ्ट बना दे और अपने रास्ते की तरफ इस्तिकामत अता फरमा दे। आमीन या रब्बल आलमीन। आयत 75। अफततमऊन अन युमिनु लकुम वक़द क़ान फ़रीक़ुम मिनहुम यस्मऊन कलाम अल्लाहि सुम्मा युहर्रिफ़ूनहु मिन बादि मा अक़ल्लूहु व हुम यअलमून। मुसलमानों, क्या फिर तुम तवक्को रखते हो कि तुम्हारी बात मान लेंगे वो? हालांकि ऐसा है उनमें से एक फरीक ऐसा है कि वो अल्लाह की कलाम सुनते हैं, फिर वो इसे समझ लेने के बाद में तहरीफ कर देने वाला है, हालांकि वो जानते भी हैं। यहाँ अहले ईमान से खिताब करके यहूदियों के बारे में अल्लाह तबारक तआला फरमा रहे हैं, क्या तुम उनके ईमान लाने की उम्मीद रखते हो, हालांकि उनके आबा व अजदाद ने क्या किया था, कलाम इलाही में तहरीफ कर दी थी। यानी मुसलमानों से खिताब है, क्या तुम ये उम्मीद रखते हो कि वो ईमान ले आएंगे? अल्लाह ताला इरशाद फरमाते हैं कि ए मोमिनो, क्या तुम उम्मीद रखते हो कि ये यहूद गुमराह जो फिरका है तुम्हारी इताअत फरमा बरदारी को इख्तियार कर लेगा? यानी उनके बाप दादा ने तो बड़ी बड़ी निशानियां और मौजूदात का मुशाहिदा किया था, लेकिन फिर भी उनके दिल क्या हो गए थे, सख्त हो गए थे। और जानने के बाद, देखने के बाद, सुनने के बाद फिर भी उन्होंने क्या किया,
नाफरमानी की। वक़द कान फ़रीक़ुम मिनहुम यस्मऊना कलामल्लाहि सुम्मा युहर्रिफ़ूनहु मिन बादि मा अक़लूहु, और बेशक उनमें से कुछ लोग ऐसे हैं जो अल्लाह के कलाम यानी तौरात को सुनते तो है, फिर उसको वाज़ेह तौर पर समझ लेने के बावजूद इसको बदल देते हैं, यानी हकीकी मुराद के अलावा उसके मतलब कुछ और बताते हैं, मफ़हूम बदल देते हैं। वहुम यालमून, यानी वो जानते भी हैं कि इसकी तहरीफ़ करने में हमें क्या-क्या सज़ा मिलेगी, हमें क्या तकलीफ़ें हमें मिलेंगी आखिरत में। उसके बावजूद वो ऐसा ही करते हैं। यानी आलिम जो हैं उलमा बनी इसराइल के, उन्होंने अल्लाह की तौरात में तहरीफ कर दी थी। मतलब उसके आयात के माने और मफ़हूम कुछ और ले लिए थे। और सारे इल्म वालों से खिताब है। कुरान करीम जो अल्लाह की किताब है, तो इसके माने मफ़हूम लोगों की मन मुताबिक मर्ज़ी के नहीं देने हैं। तो इसमें जो अल्लाह ने रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जो हम सबको बताया है माने मफ़हूम, उसी के माने मफ़हूम बताने हैं। बाज़ औक़ात ऐसा भी होता है कि अपने दर्स को और अपने जो कुरान पढ़ाने के तरीकों को एकदम न्यू बिल्कुल अपडेट करने के लिए लोग इसके तरह-तरह के माने मफ़हूम देने लगते हैं, तो ये भी बिल्कुल गलत बात है। ये बाज़ औक़ात लोग इसलिए इसके माने मफ़हूम अपनी मनमानी मर्ज़ी से इसके मतलब पहनाने लगते हैं कि वो अपनी बात मनवा सके। तो कभी भी अल्लाह की किताब के जो माने हैं, अपनी मनमानी मर्ज़ी के मतलब नहीं बताने हैं इसके। जो भी इसके माने मफ़हूम अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने बताए हैं और सहाबा ने बताए हैं, क्योंकि अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम सहाबा के टीचर थे। सहाबा को हर आयत का मफ़हूम बताते थे, समझाते थे, हर आयत के बारे में बताते थे। माने मफ़हूम सब बताए उनको सहाबा को, और सहाबा ने उन सब के माने मफ़हूम को समझा, पढ़ा और औरों को पहुँचाया। तो जो बात वहाँ से पता चलती बस हमें वही लेनी है। उसके अलावा कोई भी बातें, कोई भी अपनी मर्ज़ी से माने मफ़हूम नहीं बताने हैं। लेकिन उलमाए यहूद ने क्या किया था, उन्होंने अपनी दुनियावी चीज़ों को इतनी तरजीह दी, इतना ऊपर रखा और दुनिया के मफादात को बहुत ज़्यादा उन्होंने अहमियत दी, और उन्होंने दुनिया हासिल करने के लिए अपने तौरात के अहकामात को मनमानी मर्ज़ी और मनमानी तहरीफ़ कर दी, उसमें अहकामात में तहरीफ़ कर दी, आयात को बदल दिया। तो अल्लाह सुब्हानहू तआला फरमा रहे हैं, क्या तुम ऐसे लोगों से उम्मीद रखते हो जिन्होंने बड़ी-बड़ी निशानियाँ देखने के बाद, बड़े-बड़े मौजज़ात देखने के बाद, बादलों का साया देखा, मन सलवा देखा, मुर्दे को ज़िंदा किया, उन्होंने ये भी देखा, उन्होंने जो समंदर को फाड़ा ये भी देखा, फिर उन्होंने ये भी देखा कि फ़िरौन को गर्क किया, उन्होंने ये भी देखा, सब देखे, बड़े-बड़े मौजज़ात देखे, और उसके बाद भी उन्होंने क्या किया? बछड़े को माबूद बनाया। उसके बाद भी क्या किया? मूसा अलैहिस्सलाम के जाने के बाद भी उन्होंने बहुत-बहुत ज़िद और हठधर्मी से काम लिया, और उन्होंने जिहाद से मुँह मोड़ा, जिहाद से पीठ फेरी। तो तुम ऐसे लोगों से उम्मीद रखते हो जो अल्लाह की अहकामात में तहरीफ़ कर देते हैं, अल्लाह की आयात में तहरीफ़ कर देते हैं। तो ऐसे लोगों से तुम उम्मीद नहीं रखो कि वो तुम्हारे इस्लाम में वो दाखिल हो जाएँगे या इस्लाम की बात मान लेंगे। तो तो उम्मत मुस्लिमा को चाहिए है कि वो जो कुरान मजीद में अल्लाह सुब्हानहू तआला ने अहकामात दिए हैं इसको बचा लाए। और यहूद के बारे में अल्लाह तबारक तआला ने बहुत सूरह बकरा में काफ़ी डिटेल में बताई हैं बातें, और जो भी बनी इसराइल ने यानी यहूद ने जो भी नाफरमानियाँ की, और रसूल यानी मूसा अलैहिस्सलाम उनके रसूल थे, उनके साथ जो उन्होंने नाफरमानियाँ की, उन सब वाक़यात से, इन सब चीज़ों से हम सबको इबरत लेनी है, और उम्मत मुस्लिमा के लिए इसमें बड़ी-बड़ी इसमें नसीहत है। और अल्लाह सुब्हानहू तआला से दुआ है कि अल्लाह तबारक तआला हम सबको उन तमाम बुराइयों से बचा ले जो बनी इसराइल ने की थी, और हम सबको बेहतरीन उम्मत वस्त बना दे। हम सबको वैसा बना दे जैसे रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के सहाबा थे। सहाबा के जैसे हम सबको अमल करने की तौफ़ीक अता फ़रमा दे। आमीन या रब्बुल आलमीन। व आखिरु दअवाना अनिल हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। सुब्हानक अल्लाहुम्मा व बिहम्दिका अशहदु अन ला इलाहा इल्ला अंता अस्तगफिरुका व अतूबु इलैक। रब्बना तक़ब्बल मिन्नी इन्नका अंतस समीउल अलीम व तुब अलैना इन्नका अंतत तव्वाबुर रहीम। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। जज़ाकल्लाहु खैरन कसीरा।